Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your SST teacher. So today I'm here again on YouTube channel. My channel's name is Mandeep Singh. Please subscribe this. And I'm taking again the lecture of sixth class. The subject is history, and name of the chapter is Mesopotamian civilization. And I hope you all are fine and you will watch this video carefully and you will complete this chapter in this lecture. So I can say this is the last chapter of Mesopotamian civilization. Okay, last lecture, sorry. So and So, students, firstly, we will learn about the inventions and science technology of the Mesopotamian civilization. So, this is firstly they introduced a one number system. This is known as a sexagesimal, right? Its supreme number is 60. So, today's supreme number is 100, right? सो द डिवीज़न ऑफ टाइम वाज बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ 60. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेक्साडेसिमल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. 60 लेटर टू आल्सो दिस पोर्शन. So division of time was also based on the unit of 60. They also divide the time on the base of 60, right? So firstly they divided the day into two halves. We already know that each day have 24 hours and we are dividing this day into night equal 12 hours, right? So they also divided a 1 hour 12 hour. Okay, they also uh, divided a 1 hour into 60 minutes as compared to contemporary times. Okay, so then 1 minute is equal to 60 seconds. So this is the division given by the Mesopotamian civilization, right? So after that they also introduced a calendar which we are also going to use in these days. This is a calendar equal to 12 months and 12 months equal to 1 year, right? And week is equal to 7 days. So this is the Mesopotamian calendar, and I think this is as same as today's calendar, right? So Mesopotamian astronomy laid the foundation for world astronomy. It is also said to be that firstly astronomy is introduced in Mesopotamian civilization or by the civilization, right? But this gave a face to the world astronomy. This is a totally, I think, a surprising fact about us that firstly astronomy is introduced by Mesopotamian civilization, then it laid the foundation for the world astronomy, right? So after that they also introduced the hieroglyphs. So firstly the cuneiform script, these are just in the triangle shape. After that it developed hieroglyphs, right? So these are the pictographic representation of objects. Pictographic representation means one picture is given to you and then you have to explain this picture with alphabets, right? So each object denoted a letter, right? For example, each object denoted a letter, right? जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी पिक्टोग्राफ होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइन की आपको पिक दी गई है, तो अगर उस पिक को उन्होंने किस अल्फ़ाबेटिक लेटर से डिस्क्राइब किया है, एल से, ठीक है? सो इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. जो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें एक पिक दी गई होती है और पिक को एक अल्फ़ाबेट से रेफ़र किया जाता है. जैसे लाइन की पिक दी गई होगी आपको और उसको किससे रेफ़र किया गया, एल से, राइट? दिस इज द पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो नेक्स्ट इज now we will technology. Okay, we will talk about the technology. So invention of wheel, it is also supposed to that
Firstly, wheel was invented in Mesopotamian civilization near about 5,000 years ago, right? It helps the potters to shape clay. तो क्ले को शेप देने के लिए ये व्हील यूज़ किया जाता था पॉटर्स के द्वारा। तो उर सिटी थी जो वहाँ से हमें बहुत सारे व्हील्स मिले हैं, एंड नियर अबाउट दे आर ओल्ड एज ओल्ड 3129 CE, right? After invention of wheel, metallurgy, it is discovering many metal objects like statues, ornament. मेटलर्जी होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम बहुत सारे मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल से कोई ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे स्टैचूज बना लिए और ऑर्नामेंट्स बनाए। तो मेटलर्जी में वो निपुण थे। आफ्टर दैट ट्रेड एंड कमर्स, राइट? एग्रीकल्चर की जब भी सरप्लस हो जाती थी तो ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था उस सरप्लस का, ठीक है? जो वीट और राइस वगैरह कुछ भी उनकी जो भी एग्रीकल्चर होती है, अगर वो बढ़ जाती थी, ठीक है, तो उसको वो ट्रेड कर देते थे, दूसरे लोगों को बेच देते थे। तो ये दूसरी तरफ बार्टर्ड सिस्टम भी बहुत प्रचलित था, ठीक है? जैसे कोई चीज़ उन्होंने खरीदनी होती है, जैसे उन्होंने कोई वीट खरीदनी थी, ठीक है, तो वीट की जगह पे वो टिम्बर, स्टोन और वाइन और प्रेशियस मेटल दूसरों को दे देते थे। इसे हम एक्सचेंज सिस्टम भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है? एक वस्तु की लेने की जगह पे उसे दूसरी वस्तु दे देनी किसी को, राइट? तो इससे अलावा हमें बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सील्स मिली हैं। दीज सील्स आर रिलेटेड टू दी these seals are related to the Mesopotamian civilization, right? तो इस सील से हमें पता चलता है कि वो वहाँ पे बहुत सारा एक्सटेंसिव ट्रेड था जो अलग अलग सिविलाइजेशन के साथ चल रहा था, राइट? मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डीलिंग्स, इसकी एक और भी वजह थी कि जब भी वो ट्रेड करते थे ना, वो रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करते थे, अपनी डीलिंग्स को भी मेंटेन करते थे। तो वो डीलिंग्स और रिकॉर्ड्स कहाँ पर मेंटेन होते थे? क्ले टैबलेट्स पर, ठीक है? तो क्ले टैबलेट्स के ऊपर वो रिकॉर्ड्स को मिट्टी के ऊपर की बनी वस्तुओं के ऊपर वो लिख देते थे, ठीक है? इस तरह से वो अपने रिकॉर्ड्स एंड डीलिंग्स को मेंटेन करते थे, राइट? आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट रिलीजन एंड कल्चर। सो सिटी हैड अ पैटर्न गॉड होता था, किसी को गॉड मान लेना उन्होंने अपना, ठीक है? तो वो पैटर्न गॉड का जो टेम्पल होता था वो सेंटर ऑफ द सिटी के सेंटर में होता था। पैटर्न ऑफ गॉड को वर्शिप करने के लग वो सन, एयर, मून एंड स्टार्स को भी वो वर्शिप करते थे। दीज आर द फोर्सेस ऑफ नेचर, राइट? सो वेरियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस डन बाय प्रीस्ट। किसी भी रिलीजियस सेरेमनी को अगर कंप्लीट करना तो प्रीस्ट होते थे, तो प्रीस्ट उन्हें पूरा करते थे। तो इट विल राइज टू द प्रीस्टली क्लास, इस तरह से एक प्रीस्टली क्लास भी बन जाती है, ठीक है? एक अलग किस्म के लोग जो प्रीस्ट कहलाते थे वो अपनी क्लास का भी एक निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रीस्ट कौन होता था? किंग, चीफ प्रीस्ट। दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। वो मानते थे कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें दूसरा पुनर्जन्म मिलेगा। सो दिस इज द रिलीजन एंड कल्चर। नाउ कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड के प्रति क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? राइटिंग, लिटरेचर दिया हमें उन्होंने हमें साइंस भी दिया है, मैथमेटिक्स भी दिया है, उन्होंने हमें टेक्नोलॉजी दी है, लॉ भी दी है, ठीक है? तो इस तरह से उनका बहुत ही योगदान था, कंट्रीब्यूशन टू दी मॉडर्न। सो इन लॉ है ना, हमने सभी कुछ कर लिया है ना, डिक्लेयर के क्या क्या हुआ था ना, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इन्वेंशन में, ठीक है? अब लॉ, सो इट इज़ आल्सो सपोज दैट फर्स्टली लॉ वाज डेवलप्ड into the Mesopotamian civilization, so they have conducted a code of law। उन्होंने अपना लॉ बनाया हुआ था कि कोई पनिशमेंट, अगर कोई क्राइम करता था उसे उसी तरह की पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है? जो किंग था हैम्मुराबी, ठीक है, ऑफ बेबीलोन, उसके अपने रूल्स एंड लॉज होते थे। अगर कोई गलत काम करता था वो रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही उसे पनिशमेंट देता था, ठीक है? एंड दीज ऑल रूल्स एंड लॉ
रिटन ऑन अ स्टोन स्लैब, स्टोन की स्लैब होती थी, ठीक है, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर वो उन लॉस, रूल्स एंड लॉस को लिख देते थे, ठीक है। इस तरह से जो लॉ था वो आल्सो सपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्टली इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी, फिर भी इसका अंत हो गया, डिक्लाइन हो गया, राइट। तो इसके डिक्लाइन के क्या रीज़न थे? बहुत सारे तो माने कि फ्लडिंग हुई थी। फ्लडिंग मीन्स कि जो ये रीजन था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वो टू रिवर्स के बीच में था, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो वहाँ पे फ्लड आए होंगे, इसकी वजह से वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। दूसरा रीज़न देते हैं कि फॉल्टी इरिगेशन टेक्निक्स, जो फॉल्टी इरिगेशन टेक्निक्स थी ना, उनकी वजह से जो खनिज मिनरल्स थे वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके उनकी फसलों तक, ठीक है। फॉल्टी इरिगेशन टेक्निक्स की वजह से, खनिज पदार्थ ना मिलने की वजह से उनको मेरे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वो छोड़नी पड़ गई, ठीक है। अनदर था यूफ्रेट्स चेंज इट्स कोर्स, जो एक और रीजन दिया जाता है कि यूफ्रेट्स ने अपना कोर्स वो चेंज कर लिया था, ठीक है। दूसरा लास्ट में था वॉर, वो ये भी माना जाता है कि उनकी बहुत सारी फाइटिंग हुई थी स्मेरियन पीपल के साथ, राइट, इस स्मेरियन पीपल की। तो इस तरह से वो एक मान रहे कि वॉर भी एक वजह थी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स वेरी वेल, and if you are not understanding, and please comment in a box and I will refer in the next video. And if you can also watch this video again and again for getting good understandings, right. So I hope you will enjoy this video, and thank you so much.